Hello and welcome to VLearn. This is session number 12 of MS Office. In this session we are going to cover following topics, that is queries and sorting and filtering in MS Access. First of all, what is query? Query होती क्या है? MS Access query is just a set of stored SQL instructions. SQL instructions, that is a structured query language instructions that manipulates and or select data from one or more table. That means एक ऐसी चीज़ या फिर हम ये कह सकते हैं कि query जो है वो एक कुछ instructions को हमने club कर दिया है in a single line so that we can manipulate the data from the one as well as from many tables in one go. In the Access we have different type of queries. Firstly is select query. Select query is just for data grouping and filtering. Second type is make table query. That means we can select as well as create new tables. Then we have update query, which updates the fields from the specified table data. After that we have append query. Append query is just run a query on one table and append the result to a particular table. Append means कि हमें एक टेबल के अंदर कुछ ऐड करना है. Next we have delete query. Delete the selected records from the table. So in and all यहाँ पे हमने जितने भी टाइप्स पढ़े उन सब टाइप्स के थ्रू हम टेबल से इंटरैक्ट कर रहे हैं इन MS Access. So क्वेरीज करने के लिए सबसे पहले बेसिक नीड होती है कि कुछ टेबल होना चाहिए, कुछ रिकॉर्ड्स होने चाहिए so that कि आप उनके ऊपर क्वेरीज को अप्लाई कर सकें. अगर सिर्फ डाटा को देखना है, ग्रुप करना है, व्यू करना है, so just you need to select the select query. And if you want to make a new table from a old table, so just simply click on make table query. For updating the records which are already inside a table, you just need to fire a update query. And finally, if you want to insert some result in a table, that means कि कुछ आपने परफॉर्म किया है और जो उस क्वेरी का रिजल्ट है आपको वही अपेंड करना है अपने टेबल के अंदर, you just need to select the append query. And lastly, if you want to delete certain records from a table, you just go for delete query. Now this is a view of query. In this we have a table. This example consists of a table named patient general information, and in this we have a certain columns. If the table is appeared, then it's okay. If not, then just right click on that particular space, on this particular space, and just click add tables. This particular symbol is used to toggle, that means switch up between the design, sheet and SQL view. So in query we have three types of views. One is the design view. Design view is used to design the query, that is this view. In this view we simply design the query, the table, select the columns which I want to do, or select the type, which type of query we want to perform. Like in this example I am performing a select query. Second is the sheet view. Sheet view is the view in which we can see the result. And lastly we have the SQL view, that is जो भी आपने यहाँ पे डिजाइन व्यू में पर्टिकुलर एक एक फील्ड के अंदर एंटर किया है, इन सबको वो एक कोडिंग के थ्रू आपको शो करेगा इन SQL view. So this particular icon is used to switch among all the views of the query. In this we have a first row specifies the field. Fields means आपको कौन कौन सी फील्ड जो है अपने क्वेरी के रिजल्ट में चाहिए. मीन्स टेबल के अंदर हो सकता है आपके पास 7 to 8 फील्ड्स हों, बट एट द एंड आपको जो एंड रिजल्ट चाहिए उसमें आपको जस्ट 4 or 5 रिकॉर्ड्स ही 4 or 5 कॉलम्स के ही रिकॉर्ड देखने हैं. तो just simply write the field name in these columns. After that we have a table. In the table category we name the table. That means यहाँ पे तो एक ही टेबल है जिसके कॉलम्स को हमने इंसर्ट किया है, तो in this particular row I have the same name. But if you are applying query to different tables, then in this column you have all the tables name. टेबल नेम जो होगा वो डिपेंड करता है कि प्रीवियसली आपने फील्ड कौन सी ऐड करी है. जिस टेबल की वो फील्ड होगी उसी का नाम उसके नीचे जस्ट अपीयर हो जाएगा. आफ्टर दैट वी हैव अ सॉर्ट.
रो. इन सॉर्ट रो वी कैन राइट असेंडिंग और डिसेंडिंग. दैट मीन्स मुझे उस पर्टिकुलर कॉलम की जो वैल्यूज है उन्हें असेंडिंग ऑर्डर में डिस्प्ले करवाना है या डिसेंडिंग में, डिपेंड करेगा आपकी सॉर्ट की वैल्यू से. नेक्स्ट वी हैव अ शो. दैट मीन्स कौन कौन से कॉलम्स, जो भी आपने यहाँ पे 4 कॉलम्स लिखे हैं, 4 फील्ड्स, इनमें से भी हो सकता है कि आपको एक फील्ड को हाइड करना है, वो आपको रिजल्ट में नहीं चाहिए. सो तो सिंपली हाइड करने के लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना है. दैट मीन्स अनचेक करना है इस बॉक्स को. जो बॉक्स चेक्ड है सिर्फ वो ही फील्ड अपीयर होगी आपके एंड रिजल्ट में, दूसरी नहीं. बिलो दिस शो वी हैव अ क्राइटेरिया. द क्राइटेरिया इज जस्ट यूज्ड टू राइट अ सर्टेन इंस्ट्रक्शन, और वी कैन से कि एक ऐसी क्राइटेरिया स्पेसिफाई कर देना कि अगर हमारा पर्टिकुलर कॉलम इस वैल्यू को या उस कंडीशन को जो मैंने इस क्राइटेरिया के अंदर लिखी है उसे स्पेसिफाई करता है तभी वो आपको एंड रिजल्ट दे, अदरवाइज वो यहाँ पे उसको शो ना करे. सो दीज ऑल आर द फील्ड्स which we need to specify when we are running a query. This is the example of two table query. In this example you can able to see there are two tables. अगर दो टेबल्स पे एक साथ क्वेरी लगानी है सो देयर मस्ट बी रिलेशनशिप बिटवीन दीज टू टेबल्स, बिकॉज अगर वो रिलेटेड ही नहीं है तो आप एक क्वेरी से उन दोनों टेबल से इंटरेक्ट इन वन को नहीं कर सकते, वो उसको ज्वाइन नहीं कर पाएगा. लाइक यू कैन सी इन दिस we have two tables and this particular line signifies that these two tables are related in some respect. In the field column we write certain fields. Now you can see the table name is different in different columns. Like in the first column we have a patient general info, while in the fourth we have a patient visuals. So different tables name है because जो attribute हमने चूज किए हैं उन पर्टिकुलर टेबल से वो भी डिफरेंट है. एक आपका फर्स्ट टेबल से है जो लेफ्ट हैंड साइड पे है, इन सेकंड आपका राइट हैंड साइड टेबल से लिया गया विच इज द हाइट एट्रीब्यूट. जैसे ही आप यहाँ पे फील्ड्स में जाते हैं उस फील्ड्स के अंदर कुछ आपकी जनरल होती हैं और कुछ लुकअप वैल्यूज. दैट मीन्स इट डिपेंड्स कि आपको जस्ट अगर नंबर्स वैल्यू है आप चाहें तो उसे रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं अप टू सर्टेन प्लेसेस, कुछ इनपुट मार्क्स देना है, जो भी क्राइटेरिया आप शो करना चाहते हैं. यहाँ पे राइट क्लिक करने से जो आपका एक ग्रे एरिया है उस पर राइट क्लिक करने से ये टेबल अपीयर हो जाएगा जस्ट टू set the field properties. So in this way we can apply a two table query, that is a select query on the particular tables. Now next is the sorting data. That means query जो आपने लिखी है it just work like a sorter, जो कि टेबल के अंदर जितने भी कॉलम्स हैं उन्हें सॉर्ट करेगा according to your wish. As you can see in this we have two tables which are related to each other and the query type is a select query. In the field we have a ID number, gender, race, height, weight, but in the sort column I am writing ascending in a gender and ascending in a race. So हमारे को ये विषय कि हम कितने भी कॉलम्स में ascending descending लगा सकते हैं, बट जो उसे पहले मिलेगा दैट मीन्स उसे जेंडर पहले मिलेगा ascending ऑर्डर में, तो सबसे पहले वो रिजल्ट सेट को डिपेंडिंग ऑन द जेंडर सॉर्ट करेगा ascending. जब वो सॉर्ट हो जाएगा देन अगेन वो सॉर्टिंग अप्लाई करेगा रेस के ऊपर. सो यू कैन सी दिस क्वेरी वुड सॉर्ट बाय जेंडर फर्स्ट एंड देन बाय द रेस एंड अल्टीमेटली आपको रिजल्ट उसी फॉर्म में मिलेगा. नाउ दीज आर सर्टेन फिल्टर ऑप्शंस. फिल्टर ऑप्शंस मींस आपको अपने टेबल्स में से कुछ डाटा जो है जस्ट एक्सट्रैक्ट करना है. सो अपनी चॉइस का डाटा एक्सट्रैक्ट करने के लिए MS Access ने आपको कुछ ऑपरेटर्स प्रोवाइड करे हैं. लाइक इन द लिस्ट वी फर्स्ट हैव इक्वल्स. इफ यू वांट कि जिसका साइज जो है जिसका सैलरी जो है वो इक्वल हो 2000 या 3000 के वो ही रिजल्ट आपको शो करे तो हम इक्वल टू यूज करते हैं. आफ्टर दैट वी हैव अ ग्रेटर देन. If certain salary amount is greater than 50,000 then only it display the desired result. Same as for greater than equal to, less than equal to, and this double angular is for not equal to. If you want to specify certain range you can write between, which is a filter operator for just specifies the range. And if you want to search whether the field is null or not you can write is null. जो फील्ड जिसकी वैल्यू नल होगी
वो फील्ड आपको रिस्पॉन्स में मिल जाएगी. एंड इफ द रिवर्स इज, देन यू कैन राइट इज नॉट नल. To type a particular pattern in the text, you just write like operator. After that, if you want to perform logical OR, that means logical OR is just same like a OR gate. If one or other is true, then only it returns true. Otherwise, if both are false, then it returns false. In AND, if both are true, at this time only this will return true. Otherwise, else कोई भी कंडीशन हो उसके लिए वो फॉल्स रिटर्न करेगा. सो बेसिकली और एंड एंड आपके कुछ कंडीशंस की तरह यूज किए जाते हैं. अगर मुझे एक कॉलम के ऊपर एक से ज्यादा कंडीशंस लगानी है, अगर उन सब कंडीशंस का एक ही मोमेंट पे सेटिस्फाई होना कंपल्सरी है तो हम एंड यूज करते हैं. और अगर उनमें से कोई ऐसी है जिसे हम वन गो में चाहते हैं कि अगर इन दोनों में से कोई एक भी सेटिस्फाई हो जाए तो हमारा वर्क हो सकता है, देन वी यूज और बिटवीन द टू कंडीशंस. We can also group data in the query. Like in the sort, we have some options related to group by, sum, average, minimum to find the minimum number, maximum to find maximum, and count to count certain rows if you want to count. Standard deviation, variance. तो ये ऐसे कुछ options हैं जिनको हम use कर सकते हैं to group our data. So in this we have a total option above the sort. In this we can write that aggregated operation. Now we'll just see how to make query. In this database window we can see we have three tables. Now we click on query object, and firstly we are going to create query in design view. As soon as you double click it, this window will appear. From this dialog box, that is show table dialog box, just add department table and employee table and close it. You can see employee and department table दोनों के बीच में relationship है जो automatically उसने show कर दिया. This is the select query. यहाँ पे आपको जो query लिखनी है, मैं चाहती हूँ कि वो DID and employee ID show करे मुझे, so I'll just simply click this drop down and select DID. जैसे ही DID सिलेक्ट करेंगे ऑटोमेटिकली टेबल के अंदर डिपार्टमेंट अपीयर हो जाएगा. आफ्टर दैट आई विल जस्ट क्लिक ऑन एम्प्लॉय ID, सो वो भी यहाँ पे अपीयर हो गया. एंड लास्टली आई वांट टू सी सैलरी. देन आई वांट टू सॉर्ट द पर्टिकुलर आंसर अकॉर्डिंग टू सैलरी इन असेंडिंग ऑर्डर. नाउ दिस टाइम आई विल जस्ट सिंपली एग्जीक्यूट दिस क्वेरी. So as you can see, I'll click this button. Execute करते ही उसने query रन कर दिया है और सैलरी जैसे डिसेंडिंग ऑर्डर में है, सैलरी जैसे असेंडिंग ऑर्डर में है, उसके अकॉर्डिंग ही उसने आपका रिजल्ट डिस्प्ले किया. फर्स्टली द DID, एम्प्लॉय ID एंड देन द सैलरी, एंड अकॉर्डिंग टू द सैलरी उसने सारी की सारे रिकॉर्ड्स को रीअरेंज कर दिया. Now again I am creating a query using design view. This time I will select department table only and close it. In the department table I will just select DID. In the second I will select DNAME, and at the end I will select employee ID. But this time I will just hide this employee ID. So now we can see how does it affects our data. And in the EID the sorting is now according to descending order. By this button we just run the query. Now this time you can able to see कि जब मैंने query लिखी थी मैंने 3 कॉलम्स को सिलेक्ट किया था, बट अल्टीमेटली जो एम्प्लॉय आईडी कॉलम था उसे हाइड कर दिया था. सो एट दिस टाइम उसने DID और DNAME सिर्फ 2 ही शो करे हैं, और ये जो अरेंजमेंट शो किया है ये डिपेंड करता है कि हमने एम्प्लॉय आईडी किस ऑर्डर में दिए थे. Save this query. Now again I am just creating a new query by just adding department and employee. This time I will select DNAME, EID and employee name. Now I'll just hide this EID, and in the criteria I'll just right click it
एंड सिलेक्ट बिल्ड। बिल्ड सिलेक्ट करने के बाद ही हम यहाँ पे वो फिल्टर ऑपरेटर्स यूज कर सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे वो सारे ऑपरेटर्स आ रहे हैं जो हम डिस्कस कर चुके हैं, नॉट, और, एंड, नॉट इक्वल टू, दिस इज फॉर एंड, मल्टीप्लाई, डिवाइड, सो ऑल दिस। सो जस्ट सिंपली क्लिक ऑन टेबल्स, सिलेक्ट द टेबल, लाइक मैं डिपार्टमेंट टेबल के EID के ऊपर कुछ भी क्राइटेरिया अप्लाई करना चाहते हैं, सो मैं डिपार्टमेंट को डबल क्लिक करूंगी। आफ्टर दैट उसी कॉलम के ऊपर जिस कॉलम पे जाके आपने राइट क्लिक किया था उसे सिलेक्ट करेंगे एंड सिंपली राइट जहां पे एम्प्लॉय ID इज इक्वल टू 1 एंड जस्ट ओके। सो यहाँ पे इस क्वेरी का रिजल्ट हमें वो ही रिकॉर्ड्स देगा जहां पे आपका एम्प्लॉय ID 1 होगा। अगर एम्प्लॉय ID 1 नहीं है तो वो आपको रिजल्ट शो नहीं करेगा, और अगर एम्प्लॉय ID 2 है तब भी वो उसे रिजल्ट में इंक्लूड नहीं करेगा। जस्ट सिंपली रन इट। जैसे ही आप रन करेंगे यू कैन एबल टू सी कि एम्प्लॉय नेम और डिपार्टमेंट नेम अपीयर हुआ है, एम्प्लॉय ID नहीं हुआ बिकॉज आपने वहां पे उसको हाइड कर दिया था। यू कैन स्विच टू डिजाइन व्यू ऑल्सो। सो यहाँ पे मैंने अब इसे अनहाइड कर दिया। नाउ द डाटा शीट व्यू, दिस टाइम यू कैन एबल टू सी द EID. From this you can switch between the design, data sheet and that to the SQL view also. So you can see if we are writing an select query in SQL, so this is the format. तो अगर आपको ये लिखना नहीं आता आप पहले डिजाइन व्यू में जाके उसे टाइप कीजिए एंड आफ्टर दैट जस्ट यू कैन सी कि उसकी SQL व्यू कैसे बनेगा। Now you can click on totals also. जैसे ही आप इस टोटल पे क्लिक करेंगे वैसे ही आपका एक बार अपीयर हो जाएगा यहाँ पे रो जिसकी हेडिंग होगी टोटल। सो दिस टाइम यू कैन एबल टू ग्रुप दिस पर्टिकुलर आंसर बाय द ग्रुप बाय, और यू कैन ऑल्सो काउंट द टोटल नंबर। जस्ट click on the drop down, you can able to find all the grouping elements. So I just simply select the group by in EID and delete the criteria, and here also. Now we just execute it. अब हमने यहाँ पे ग्रुप बाय तो लगा दिया, बट उसने हमें ये कहा कि अगर आप ग्रुप बाय कर रहे हैं तो क्या पर्टिकुलर वर्क परफॉर्म करना है उसको डी नेम के ऊपर। सो आई सिंपली वांट टू जस्ट काउंट द नंबर ऑफ डिपार्टमेंट अकॉर्डिंग टू दैट एम्प्लॉय ID and just delete this. Now execute the result. Now you can able to see कि एम्प्लॉय ID 1 के काउंट ऑफ डिपार्टमेंट 3 है, एम्प्लॉय 2 के पास 2 डिपार्टमेंट्स हैं. सो इन दिस वे यू कैन परफॉर्म सिलेक्ट क्वेरी बाय यूजिंग दिस submission options also. You can also count it, find the minimum salary, maximum salary. Again in this, by clicking this query tab you can switch to different type also. Like as in starting we came to know कि हमारे पास बहुत सारे types होते हैं queries बनाने के, तो I'll simply select update query. So update query के अंदर हमने DID select किया है and here I'll select EMP and EMP name. So I just want to set the DID column only. So I want DID to be 4 and criteria is simply right click it, build, select the table and that the value like on EID I want is equal to ओके कर दीजिए और यहाँ पे हम इसकी वैल्यू एम्प्लॉय नेम की चेंज कर देते हैं डी से. सो जिस एम्प्लॉय का ID 3 है उसका नाम वो डी कर दे, हम ये परफॉर्म करना चाहते हैं. सो जैसे हम उसे क्लिक करेंगे ऐसा कोई एम्प्लॉय ID है ही नहीं जिसका ID 3 हो. दैट्स वाई उसने हमें कहा कि यू आर अबाउट टू अपडेट 0 rows. सो आई विल जस्ट सिंपली change the value and this time I'll write 1. Now the message appears you are about to update 3 rows. If I click yes then only it will change, if no then no change occurs. So I just simply click on yes. Now this time when I'm going to table
and select the particular table on which I am changing, that is the employee table. So when we open employee table, we can able to see that वो employees जिनका ID 1 है उनका नाम वो D से चेंज कर चुका होगा. So जस्ट टेबल पे आप क्लिक करना है, वो टेबल ओपन हो जाएगा. So जैसे ही ओपन करेंगे we can able to access that particular table. क्वेरीज के अंदर हम अपडेट, अपेंड ये सब परफॉर्म कर सकते हैं बाय जस्ट क्लिकिंग दैट क्वेरी टैब ओनली. नाउ नेक्स्ट इन द सेशन वी हैव अ क्वेरी विजार्ड आल्सो. दिस इज द क्वेरी विजार्ड विंडो. यहाँ पे फर्स्ट सिंपली क्वेरी विजार्ड डायलॉग बॉक्स है. इस डायलॉग बॉक्स के अंदर ये बता रखा है कि आपको कुछ भी क्वेरी क्रिएट करनी है तो बस ये बताना है कि कौन कौन सी फील्ड्स इंसर्ट करनी है. जैसे ही उसे इंसर्ट कर देंगे बाय दिस पर्टिकुलर एरो सिंबल, वो फील्ड यहाँ पे आ जाएगी. तो पहले ये बता रहा है कि आपकी अवेलेबल फील्ड्स कौन सी है और जस्ट उसके साथ लिखा आ रहा है सिलेक्टेड फील्ड्स. यहाँ पे हमें टेबल सिलेक्ट करना है फर्स्ट ऑफ ऑल, देन द कॉलम्स, एंड आफ्टर दैट आई जस्ट क्लिक ऑन नेक्स्ट बटन सो दैट कि वो जितने भी हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया है उसके थ्रू हम कोई भी क्वेरी रन कर सके. सो डिजाइन व्यू के अंदर हम एक एक करके वहां पे लिख रहे थे, जबकि इसके अंदर हम सिंपली नेक्स्ट पे क्लिक करते ही उसको रन कर सकते हैं. एज इन दिस as when we open the Access, Access ओपन करेंगे सबसे पहले. सो एक्सेस के अंदर भी हम क्वेरी विजार्ड यूज कर सकते हैं जिससे कि हम उसे एक्सेस कर पाए. इन दिस वी कैन ऑल्सो परफॉर्म सॉर्टिंग एंड फिल्टरिंग. जस्ट सिंपली हमें टेबल व्यू में जाना है, वहां पे कर्सर प्लेस करना है अपने कॉलम पे जिसे हम सॉर्ट करना चाहते हैं. सो जैसे ही हम उसे सिलेक्ट करेंगे हमारे पास कुछ रिकॉर्ड्स आएंगे. रिकॉर्ड्स में जाके हमें सॉर्ट पे क्लिक करना है एंड आफ्टर दैट सॉर्ट असेंडिंग और डिसेंडिंग डिपेंडिंग ऑन द चॉइस. सो जिस पे भी आप क्लिक करेंगे वो अकॉर्डिंगली उसके अकॉर्डिंग सॉर्ट कर देगा. अगर असेंडिंग पे क्लिक किया होगा तो असेंडिंग भी सॉर्ट करेगा, डिसेंडिंग पे क्लिक करेंगे तो डिसेंडिंग के थ्रू सॉर्ट कर देगा. सो जैसे हम क्वेरी में सॉर्टिंग लगा सकते हैं, सेम ऐसे ही टेबल में भी सॉर्टिंग अप्लाई कर सकते हैं. नाउ नेक्स्ट इज द फिल्टर बाय सिलेक्शन. अगर आपको किन्हीं रिकॉर्ड्स को जो आपने पूरा स्प्रेडशीट बना रखे है एक्सेस में टेबल के फॉर्म में, उसको कोई फिल्टर करना है, मीन सिलेक्टेड डाटा देखना है, दैट कैन ऑल्सो पॉसिबल बाय दिस फिल्टर बाय सिलेक्शन ऑप्शन. This feature will filter the records that contains the identical value which is given in that particular field. जो भी हम स्पेसिफाई करेंगे उससे आइडेंटिकल जो वैल्यू उसमें किसी फील्ड में होगी वो ही हमें शो करेगा. For this we just place the cursor in the field that we want to filter by the record and click the filter by selection option which is available in the toolbar. We just need to select records, then filter and lastly filter by selection. फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने सिटी फील्ड के ऊपर कर्सर प्लेस कर रखा है तो मैं सेकेंड रिकॉर्ड देखना चाहती हूँ जिसकी वैल्यू XYZ है, सो दैट द फिल्टर टेबल विल शो ओनली दैट पर्टिकुलर वैल्यू लाइक दिस. नेक्स्ट इज फिल्टर बाय फॉर्म. दिस पर्टिकुलर मेथड क्रिएट्स अ ब्लैंक वर्जन ऑफ द टेबल विद द ड्रॉप डाउन मेन्यूज for each field that each contains the values from the records in that particular field. Means हम सबसे पहले फिल्टर बाय फॉर्म पे क्लिक करेंगे, वो हमारे लिए एक ब्लैंक रो क्रिएट कर देगा और उस ब्लैंक रो में हम वो सब वैल्यूज लिख सकते हैं जिसके रिस्पेक्ट में हम अपने पूरी एक्सेस की जो टेबल है उसको फिल्टर करना चाहते हैं.
तो वो हम वैल्यूज यहाँ लिख देंगे लाइक इन दिस। यहाँ पे मैंने एड्रेस टाइप कर दिया, तो अब इसके अकॉर्डिंगली मुझे सारे के सारे रिकॉर्ड्स फिल्टर करके प्रोवाइड कर देगा। सो दिस इज द फिल्टर बाय फॉर्म ऑप्शन। This particular method can be used to select the records based on the record that is selected by that or do not exactly have the same value. We just type the formats in the field and where the drop down menus appears. So in this way I can filter the form. And finally जो हमने filter किया है we can able to save it also by just click on file then save as query. So in this by this we can able to save our filter also. जैसे हमने फिल्टर अप्लाई किया है वैसे हम फिल्टर रिमूव भी कर सकते हैं। सो फिल्टर रिमूव करने का मतलब ये है कि सारे के सारे रिकॉर्ड्स एक ही बारी में देखना। सो बाय दिस यू जस्ट सिंपली क्लिक द डिप्रेस्ड अप्लाई फिल्टर टॉगल बटन ऑन द टूल बार। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे वैसे ही सारे रिकॉर्ड्स अगेन आपको विजिबल हो जाएंगे। सो MS एक्सेस के अंदर हम फिल्टर्स अप्लाई कर सकते हैं, सॉर्टिंग और ये सब ऑपरेशंस। नाउ डू इट योरसेल्फ। फर्स्टली व्हाट डू यू मीन बाय क्वेरी? क्वेरी से क्या मतलब है? एंड we need to explain all types of query, that is a select, update, append and make table, and lastly create two student tables and then apply query on it. It depends कि आप क्या क्वेरी लगाना चाहते हैं। आप ये चाहते हैं कि जो दो स्टूडेंट्स टेबल्स आपने बनाए हैं, लेट्स से आपने उसके अंदर एक टेबल के अंदर उसका रोल नंबर, नेम, एड्रेस स्टोर किया है, ऑन द अदर हैंड यू आर जस्ट स्टोरिंग हिज और हर numbers. So you can apply the select query to view the numbers of a particular student, or you can also count the numbers or came to know about what is the maximum number in this particular subject. So for this purpose you need to apply certain queries. That's all for this session. Thank you. Happy learning. Be learning.